my love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. The united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. That some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken. It's been a terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I, of course, couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. Sorry. One second. I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened. And I assured both of them that myself and our party is going to support fully. देखिए, राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम था आज का, वो टोटल नॉन पॉलिटिकल था। वो पहले वो यूएस में थे जब पहलगाम का सानिया पेश आया। उन्होंने अपना यूएस टूर जो है वो कंक्लूड किया। उसके बाद वो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सीडब्ल्यूसी बुलाई, वहां कंडेम किया, रेजोल्यूशन पास किया। ऑल पार्टीज मीटिंग में उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद आज वो कश्मीर के विजिट पे आए।
इस विजिट का ये मकसद था, जो हमारे जख्मी हुए हैं पहलगाम में टूरिस्ट, वो आर्मी हॉस्पिटल में थे, उनकी खबर ली। उसके बाद वो यहाँ पे ये हरिनवास में आके जो भी, चाहे वो टूरिस्ट ऑपरेटर थे, चाहे शिकारा वाले थे, हाउस बोट वाले थे, होटल वाले थे, कुछ स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे इस वक्त परेशान हैं, उनके पेरेंट्स भी आके राहुल जी को मिले और उनको कहा कि आप अपना रोल निभाइए। कश्मीर जो है, कश्मीरी लोग हिंदुस्तानी है और हमें कोई हिंदुस्तानी देने की कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। और मैं आप मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी पॉजिटिव रोल इख्तियार कीजिए, क्योंकि ये नेशनल सतह पे कुछ चैनलें हैं जो कश्मीरी लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे आदिल जो लड़का था, उसने टूरिस्टों को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश किया। कश्मीरी हमेशा खातिरदार रहा है टूरिस्ट का, इसलिए राहुल गांधी जी का एक मैसेज था, वो आए। अभी वो क्या कहते हैं, गवर्नर साहब से मिलेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, वो पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। बहुत दुख है उनको और बहुत पीड़ा है कि जो हमारे यात्री शहीद हुए, गुजर गए, उनका बहुत दुख है। उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी को कहा, हम आपके साथ खड़े हैं, जो एक्शन करना चाहते हो टेररिज्म के खिलाफ करो। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, 11 साल में देखो कितने हादसे हुए। कुकरनाग में हमारे जवान मरे, रजौरी पुंछ में मरे, परसों कुठवा में मरे, आज यहां टेररिज्म एक्ट हुआ। यही बीजेपी वाले कहते थे देश एक मजबूत हाथों में है। कौन सा मजबूत हाथ है? ये तो सिक्योरिटी लैप्स है। ये आप हिंदू मुसलमान बना रहे हो तो सिक्योरिटी लैप्स है। क्यों नहीं वहां पे इतना बड़ा टूरिज्म एरिया है, चाहे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो और पहलगाम हो। इस एरिया में तो 3 लेयर सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्यों वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी? क्यों हमारे टूरिस्ट वहां मारे गए? ऐसा आश्वासन या कह सकते हैं कि कोई ऐसी टीवी डिस्कस की गई है जिससे इस वक्त वादिया कश्मीर की जो नहीं, वो दुख में है। राहुल गांधी जी रियली, देखो कुछ लीडर जताते हैं दुख, लेकिन राहुल गांधी जी शॉक में है, वो शॉक में है, दुख में है। और वो इसी चीज को लेके यहाँ आए हैं, पूरी सूरत हाल का जायजा लेके, फिर जो उनसे बनेगा एज अपोजिशन लीडर वो आगे बात करेंगे। बेसिकली जिस प्रकार से पहलगाम सांके के बाद हिंदुस्तान के डिफरेंट यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में जिस प्रकार का जो माहौल पैदा हुआ, जिसमें हिरासमेंट है, इंटिमिडेशन है, पकड़दाड़ है और जो खौफ वारास का माहौल है, उस प्रकार को लेके हमने जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जो है मामला टेकअप किया। साथ ही साथ जो हिरासमेंट, इंटिमिडेशन पर्टिकुलरली नॉर्दर्न स्टेट्स में हो, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके मामले हमने जो है नेता प्रतिपक्ष के साथ उठाई। और जिस तरीके से उत्तराखंड स्टेट में जो है एक राइट विंग ग्रुप ने जो स्टेटमेंट दिया, वीडियो स्टेटमेंट, डेथ थ्रेट जिसमें दिया कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर स्टेट को छोड़े, वरना आपके साथ जो है ऐसा बर्ताव किया जाए कि आप जो है आपकी पुश्ते तक याद रखी जाएगी। तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं, हमने जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष से जो है अपील की कि आप भारत सरकार के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ और बाकी जो है अधिकारी के साथ उठाए, ताकि इन सीरियस मामला को रोका जाए। तो जवाब में जो है रिस्पांस दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि जो है नेता प्रतिपक्ष ने कि इन मामलों को जो है वो संजीदगी से ले लेंगे और पर्सनली जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और दीगर जो है अधिकारी से मिलेंगे, ताकि इस प्रकार का जो खौफ वारस का जो माहौल है ये बंद हो जाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने मारपीट की, जिन लोगों ने जो है हिरासमेंट की, जिन लोगों ने जो डेथ थ्रेट्स दी, जिन लोगों ने वीडियो सर्कुलेट किए, उनके खिलाफ एक तो FIR साथ साथ